Good morning all. Welcome back to our channel. As all you know, a new education policy for Indian educational system has been introduced. Yesterday, Mr. Ramesh Pokhriyal Nishank and Mr. Prakash Javadekar has introduced new education policy known as MEP 2020 for Indian education system that was promised by this government in 2014 that the education system of India need a great reform. As in our education system, we are following the policy introduced in 1986. Afterward, after 34 years, our education policy has been renewed or changed completely. And it is well required and well demanded. It is demanded due to current scenario, current competition, current environment, economical, financial, scientific environment needs a great reform in our education system, and that has been introduced finally after that much years. After great study, after getting suggestions from all the stakeholders, all the educational persons, this draft policy has been introduced. Applicability of this policy will be announced today कि कब से ये applicable होने वाला है. This policy has twofold basically. The first part is for the school education and the second part for the after school education, or you can say professional or higher education. And the reform is based on current requirement and scenario. So let's discuss some of the key feature of this policy, as the detailed fine print will be available sooner or later, but as the key features comes out, so I am here to discuss some of the key features that will affect us, our children, our friends who are in schools or who are going for professional and higher education. तो चलिए discuss करते हैं some key features of this new education policy 2020. So as I told you, ये पॉलिसी दो फ्रेम में आप समझ सकते हैं. One part for school education, and the first and important reform in this policy for the school education is the 10+2 framework has been removed. जो अर्लियर हमारा सिस्टम था कि फर्स्ट 10 years 10th तक आप अपना एजुकेशन कंप्लीट करेंगे ऑन अ स्पेसिफाइड फ्रेम, एंड देन आप एक स्पेसिफिक स्ट्रीम चूज करके 2 year सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन लेंगे. नाउ इट इज कन्वर्टेड इन 5+3+3+4, and that is total school education is total 15-year education of school divided in 4 segment. First 5 years that is 3 year जिसे हम play school बोलते हैं, and 2 year grade 1 and grade 2. This 5 year will be considered as first segment, the primary segment, foundational state. 3 and 2 year included in that, where student will understand the language, the student will understand of study with play, nothing else. Second, the preparatory stage of the grade, that is 3 to 5 year. 3 to 5 year, middle school grade 6 to 8, and secondary stage of grade 9 to 12. So first 5 year, that is foundational state. Second 3 year, that is class 3 to class 5, वो आपका रहेगा प्रिपरेटरी स्टेज, जहां पे हमें लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना है, स्टूडेंट्स को, बच्चों को लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कुछ सीखना है. देन द थर्ड स्टेज, मिडिल स्कूल, grade 6 to 8, and in this grade कोडिंग सिस्टम, कोडिंग लैंग्वेज, कोडिंग प्रोसीजर भी स्टार्ट कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स के लिए. एंड देन 9 to 12, that is secondary stage, earlier known as secondary and higher secondary, that is a single stage of 4 year 9 to 12. And
यहां पे इस पर्टिकुलर स्टेज में एक कंप्लीट फ्रीडम स्टूडेंट्स के हाथ में दे दिया गया है, कंप्लीट फ्रीडम। दैट मींस देयर इज नो स्पेसिफिक स्ट्रीम लाइक की आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स। स्टूडेंट कैन चूज any bunch of any set of subjects based on his interest or her interest। आप साइंस के साथ म्यूजिक ले सकते हैं, यानी डेफिनेटली उसमें कुछ ऐसा रहेगा कि आपके पास एक प्रिम या जिसे हम मेन स्ट्रीम बोलते हैं, एक मेन स्ट्रीम रहेगा, एक उसका सब स्ट्रीम रहेगा। मेन स्ट्रीम के साथ आप सब स्ट्रीम में कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे अभी हमने बोल दिया हमें साइंस स्ट्रीम चूज करना है, तो आपको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ सब्जेक्ट्स दे दिया जाता है, यू हैव टू स्टडी दैट ओनली। नाउ यू कैन मेक योर ओन सेट ऑफ सब्जेक्ट्स कि आप अपना किसी भी स्ट्रीम के साथ अपना इंटरेस्ट का कोई भी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। दैट इज द ग्रेट चेंज इन दिस सिस्टम। द फर्स्ट थिंग कि आपका पहले 5+3+3 4 कॉन्सेप्ट आ गया। सेकेंड, आपको सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट चूज करने का कंप्लीट फ्रीडम प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसमें आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, म्यूजिक, आर्ट्स, स्पोर्ट, वोकेशनल, कुछ भी आप एक्यूमुलेट करके अपना एक सेट ऑफ सब्जेक्ट्स बना सकते हैं। एंड द सेकेंड रिफॉर्म, द इंपॉर्टेंट वन, आपका असेसमेंट प्रोसीजर, स्टूडेंट का असेसमेंट प्रोसीजर 9 to 12 ग्रेड के बीच में असेसमेंट प्रोसीजर को भी रिफॉर्म कर दिया गया है। नाउ बोर्ड बर्डन को कम करते हुए, लाइक 10th एंड 12th में जो बोर्ड का बर्डन है उसे भी कम करते हुए अब एक सेमेस्टर सिस्टम फॉलो होगा। दैट मींस एवरी ईयर विल बी डिवाइडेड इन 2 सेमेस्टर ऑफ 6 months एंड 6 months ईच, जहां पे आपको 2 बार असेस किया जाएगा। एंड दैट इज अगेन द असेसमेंट प्रोसीजर विल नॉट बी असेस्ड बाय ओनली टीचर्स, स्टूडेंट विल असेस देमसेल्फ आल्सो एंड फ्रेंड्स विल असेस द स्टूडेंट्स आल्सो। ये पूरा रिफॉर्म असेसमेंट सिस्टम स्टार्ट किया गया है, यानी आपका असेसमेंट प्रोसीजर, आपका जजमेंट, आपकी ग्रेडिंग सिस्टम सिर्फ क्रैम्पिंग पे, यानी जिसे हम बोलते हैं ना लर्न करने पे डिपेंड करती है, रटने पे नहीं। हमें वो बुकिश नॉलेज से बाहर निकाल के प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ मूव किया जा रहा है। दैट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पॉलिसी कि हमें स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करते करते हमारे एक पर्टिकुलर, एटलीस्ट एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, एटलीस्ट एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज आ जाए, हम उसमें बहुत अच्छे लेवल तक आगे चले जाएं। ईदर दैट इज इन मैथमेटिक्स, म्यूजिक, आर्ट, साइंस, सोशल साइंस, कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड, उसमें आप एक्सपर्टीज लेके यानी प्रैक्टिकल नॉलेज लेके बाहर निकले। ये है स्कूल रिफॉर्म प्रोसीजर। और जो इसका सेकेंड पार्ट, जो इसका सेकंड पार्ट है वो है, हम बात कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट सेगमेंट की। अर्लियर हमारे पास अलग अलग अथॉरिटीज थे लाइक यूजीसी, एआईसीटी, अभी इन सब को रिप्लेस करके एक सिंगल रेगुलेटर बनाया गया है, दैट इज HECI, हायर एजुकेशन रेगुलेटर। एक ही सिंगल रेगुलेटर रहेगा, हायर एजुकेशन रेगुलेटर, यानी सारे कॉलेजेस अभी सिर्फ एक ही रेगुलेटर के अंडर में कवर हो जाएंगे। एंड द डिग्री प्रोग्राम दैट इज नोन एज ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, द डिग्री प्रोग्राम दैट इज ग्रेजुएशन प्रोग्राम इज डिवाइडेड इन 2 parts, 3 year or 4 year। इफ यू विल चूज जस्ट द ग्रेजुएशन प्रोसीजर, आपको 3 year डिग्री प्रोग्राम पे जाना है। इफ यू वांट टू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन सिस्टम, तो आपको 4 year डिग्री प्लान पे जाना है। 3 year डिग्री प्लान ग्रेजुएशन पार्ट, 4 year degree plan that is 3 year plus 1 year। in that situation आपका जो post graduation होगा that will be of 1 year only। तो if you are going for post graduation then 4 year degree plan पे आप जाएंगे और उसके बाद 1 year आप post graduation scheme को चूज करेंगे। डिग्री प्लान को भी मल्टीपल इन एंड एग्जिट के फ्रेम में डिजाइन किया गया, बिकॉज ये बहुत बड़ा इशू था। मैंने फर्स्ट ईयर कर लिया, मैंने भी अपना जो भी ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, अभी मुझे ब्रेक आ गया ड्यू टू एनी रीजन, मुझे किसी और प्रोग्राम के लिए जाना है, मुझे किसी और एजुकेशन के लिए जाना है, मुझे किसी जॉब के लिए जाना है, और फिर मेरा डिग्री प्रोग्राम वहीं स्टॉप हो जाता है। नाउ दिस डिग्री प्रोग्राम इज डिवाइडेड इन मल्टीपल इन एंड एग्जिट सिस्टम। मींस जैसे आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करेंगे आपको एक सर्टिफिकेशन मिलेगा,
एज यू विल कंप्लीट योर सेकेंड ईयर आपको अगेन एक सर्टिफिकेशन यानी आपको डिप्लोमा मिलेगा, और जैसे ही आप थर्ड ईयर कंप्लीट करेंगे आपको बैचलर का डिग्री मिलेगा। तो इफ आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके एग्जिट करते हैं और वापस फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके एग्जिट करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, और फिर आप वापस एंटर करते हैं तो आप सीधा सेकेंड ईयर में एंटर करेंगे और उसको कंप्लीट करके यू विल गेट द डिप्लोमा। आप सेकेंड ईयर डिप्लोमा लेके एग्जिट करते हैं तो आप वापस एंटर करेंगे डायरेक्टली थर्ड ईयर में, और आपको उस थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट ग्रेजुएशन डिग्री मिल जाएगा। तो ये मल्टीपल इन आउट स्कीम, एंड दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स जो जनरली अपनी ग्रेजुएशन ड्यू टू एनी रीजन कंप्लीट नहीं कर पाते, उनमें ब्रेक आ जाता है। नेक्स्ट, बीएड कॉलेजेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म यहाँ पे है। बीएड कॉलेजेस, स्पेसिफिक बीएड कॉलेजेस को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। अब रेगुलर कॉलेजेस विल प्रोवाइड बीएड आल्सो एंड दैट विल बी ऑफ 4 ईयर। तो बीएड प्रोग्राम भी आपका अब 4 ईयर का रहेगा। इस तरह से ये इतने इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स दिस पॉलिसी इज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन योर स्किल्स डेवलपमेंट। आपको अभी एज ऑल यू नो कि इंडिया यंगेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, लेकिन हमारा प्रोडक्टिविटी कम है बिकॉज हमारा एजुकेशनल सिस्टम हमें प्रोडक्टिव नहीं बनने देता। एटलीस्ट 22, 23 और 24 ईयर ऑफ एज तक हम प्रोडक्टिव नहीं होते। नाउ यहां पे हमें वो चेंजेस मिलेगा। यस, एक कंट्रोवर्शियल इश्यूज भी यहाँ पे इशू भी एक साथ में ऐड हुआ है, इसे हम कंट्रोवर्शियल बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। एवरी स्टूडेंट एट द अर्लियर स्टेज ऑफ स्कूल मस्ट लर्न 3 लैंग्वेजेस। उन्हें 3 लैंग्वेजेस चूज करना है। वो 3 लैंग्वेजेस कंप्लीटली फ्रीडम होगा, हर स्टेट अपने लेवल पे वो 3 लैंग्वेजेस डिसाइड करेगा कि कौन सा लैंग्वेज अब ऑप्शन में आपको दिया जाता है। एटलीस्ट आपको 3 लैंग्वेज लेना पड़ेगा। तो लैंग्वेज पे भी फोकस है, स्किल्स पे फोकस है, मेंटल एबिलिटी डेवलपमेंट पे फोकस है, एंड प्रोफेशनल स्किल्स पे, टाइम सेविंग पे और अर्ली प्रोडक्टिव मैन पावर क्रिएट करने पे हमारा यहां फोकस है इस पर्टिकुलर पॉलिसी। सो इट्स हैंड्स अप फॉर दिस, इट्स थम्स अप फॉर दिस पॉलिसी, एंड डेफिनेटली it will be beneficial for our coming generation. As the detail comes out, as the fine print will comes out, I will come again in front of you with such detail and fine print. फाइन, चलिए तो इस बड़ी न्यूज के साथ और इस बड़े डेवलपमेंट के साथ जिसके ऊपर डिस्कशन हमने किया, समाओ आपको कुछ की फीचर्स पता चले होंगे। फिर मिलेंगे जब इसका फाइन प्रिंट आएगा। अगेन मैं एक वीडियो लेके आपके पास आऊंगा। तो मैं नितिन अग्रवाल आप सबको इसकी 34 ईयर के बाद जो एजुकेशन रिफॉर्म हमारे यहाँ पे आने वाला है उसकी आपको बधाई देते हुए विदा लेता हूं। बाय, सी यू।